દિવસ રાત જેને ભોળાને ભજ્યા છે ને એને એવું નહીં માનતા કે કથા સાંભળશું અને ભગવાન શિવની ભક્તિ કરશું કે કૃષ્ણની ભક્તિ કરશું એટલે આપણે અમર બની જશું. નહીં, મૃત્યુને અટકાવવાનો કોઈ વિકલ્પ જ નથી, કોઈ રસ્તો જ નથી. ધ ડેથ કાન્ટ બી સ્ટોપ. માનવ રૂપ લઈને આવ્યા ત્યારે શામળિયાના એ શરીર અમને મહાણે જોયા મેઘરા, એને વિદાય લેવી પડી. તો આપણે કઈ વાડીનો મોળો? ભગવાન રામે પણ સરયુની અંદર જળ સમાધિ લેવી પડી. એટલે એમ માનશો કે આપણે ભરતભાઈની કથા સારી રીતે સાંભળી લઈશું એટલે આપણે અમર બની જશું, એવી ખોટી ચેતરામણી વાત નહીં. મૃત્યુને અટકાવવાનો કોઈ રસ્તો જ નથી. વિધાતાએ તો મૃત્યુમ જન્મતામ વીર દેહે ન સહજાયતે અદ્યવાપ્ત શતાંતે વા મૃત્યુર્વૈ પ્રાણીનામ ધ્રુવઃ. માતાના ઉદરની અંદર પ્રથમ બુંદ બંધાય ન્યા લેખ લખાય છે. એની લેખની ઉપર મેઘ મારવા વાળો હજી સુધી કોઈ જન્મ્યો નથી. એટલે મૃત્યુને અટકાવવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. ધ ડેથ કાન્ટ બી સ્ટોપ્ડ બટ ઇટ કેન બી નોબલ મેડ. આવું બધું સત્સંગ, કથા, કીર્તન, યજ્ઞ, યાગાદી, ભજન, દાન, દક્ષિણા કરીએ તો એને સુધારવાનું કામ આપણા હાથમાં છે. મૃત્યુને સુધારી શકાય છે, અટકાવી શકાતું નથી. ને આ શેનો ધંધો લઈ બેઠા આપણે? મૃત્યુને સુધારવાનો ધંધો. જેમ રાજા પરીક્ષિતને ખબર પડી ગઈ હતી સપ્તમે હનિ, સાતમે દિવસે મારા પ્રાણની હાનિ થવાની જ છે, તક્ષક કરડવાનો જ છે, જીવવાનો નથી, બચવાનો નથી, પણ મારા મૃત્યુને સુધારી લો. એમાં હું ને તમે બધા જ પરીક્ષિત છીએ. આવો કોઈ મોકો મળે ને ભાવથી જો આવી કથા એકાદી સાંભળી લઈએ ને તો આપણું મૃત્યુ સુધરી જાય. ન પછી આત્મા નરકમાં જાય, ન પછી કોઈ નબળી જગ્યાએ જાય. અને યદગતવાન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. આત્મા ન્યા જાય જ્યાં ગયા પછી આત્માએ બીજું ચક્કર ન ફરવું પડે, એનો આ ધંધો છે. તો હિમાલયની અંદર કેદારનાથની અર્ચના વંદના કરીને કેદારનાથની પાછળ જાય અને વારા ફરતી બધાના જ પતન થાય છે. ભગવાન યુધિષ્ઠિર માત્ર ને માત્ર ધર્મરાજાની પરીક્ષામાં પાસ થઈ અને સદેહે કૂતરાની સાથે ગયા. અને આ બાજુ પરીક્ષિત રાજા બને છે. વારસામાં મળેલી ઘણી બધી સંપત્તિ હતી અને એ બધી જ સંપત્તિ સારા કામની અંદર વાપરવા માટેનો નિર્ણય કરે છે અને પરિણામે બધી જ સંપત્તિનો સદુપયોગ કરવા લાગ્યા. અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે છે. એમાં 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરી નાખ્યા. 4થો અશ્વમેઘ યજ્ઞ ચાલતો હતો. એવા સમયે અશ્વની પાછળ બધા જતા હતા તો સરસ્વતી નદીને કિનારે એક ગાય અને એક બળદ, જે બળદ માત્ર એક પગે ઊભો હતો અને પાછળથી કાળો પુરુષ એને મારી રહ્યો હતો. જેવા રાજા પરીક્ષિત આવ્યા એટલે તરત જ પેલા ગાય અને બળદ પોતાના મૂળ રૂપમાં આવી ગયા. કારણ કે ગાય એ ધરતી માતા હતા અને પેલો વૃષભ યાને કે બળદ એ ધર્મ હતો. મહાનુભાવો બધા આગળ આવી રહ્યો. રાણા સમાજના બધા જ સદસ્યો જે આવ્યા, પ્રમોદભાઈ એમને હર્ષદભાઈથી લઈ અને જે પણ આસિતભાઈથી લઈને મને કોણ છે ખ્યાલ ન હોય, પણ બધા આગળ આવી જાવ તમે. શુદ્ધ પુરાણી કથાનું નિરૂપણ કરતા કહે કે હે શૌનકાદી મહાત્મા, આખીર ગાય અને બળદ પોતાના મૂળ રૂપમાં ધરતી અને ધર્મના રૂપમાં આવીને કહે કે આ કાળો પુરુષ એક કળિયુગ છે, આને મારી નાખો. રાજા પરીક્ષિત મારવા જાય પણ કળિયુગ કહે કે મને તમે મારો નહીં, મને કોઈ સારું સ્થાન આપી દો. આવો પધારો, બધા જ આગળ આવો. રાણા સમાજના જે પણ શ્રેષ્ઠીઓ છે ખૂબ ખૂબ બધાનું સ્વાગત, સન્માન. આગળ આવો, અહીંયા સોફો ખાલી છે, આગળ પણ આવો. ઓમ નમઃ શિવાય, હરિ ઓમ નમઃ શિવાય.
ઓમ નમઃ શિવાય. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. ખૂબ સ્વાગત છે જે પણ મહાનુભાવો આવ્યા અને કથા પૂરી 7 વાગે થશે એટલે બધાનું સન્માન કરશું. બધા 7 વાગ્યા સુધી રોકાવાના છે ને? રોકાજો, મારો એક આગ્રહ છે. ઉતાવળ નહીં તો કલાક કથા સાંભળો, આનંદ આવશે. ઉતાવળ હોય તો કહેજો પ્રમોદભાઈને, બાકી ગમશે તમે કથા સાંભળજો. અને રાણા પરિવાર તો આપણો પરિવાર, આપણે તો બધા એક છીએ. ઘણા વર્ષો પહેલાં નાની દમણમાં રાણા સમાજની વાડીમાં આપણે કથા કરી હતી. ખૂબ સ્વાગત છે. ખૂબ રાજીપો વ્યક્ત કરીને આપણે કથા આગળ વધારીએ. રાજા પરીક્ષિત સરસ્વતી નદીને કિનારે જાય. એક ગાય અને બળદ એક પગે ઊભો હતો. એની પાછળ બળદને કાળો પુરુષ મારતો હતો, ટીપતો હતો, પીટતો હતો. જેવા રાજા પરીક્ષિત નજીક ગયા એટલે ગાય અને બળદ મૂળ રૂપમાં આવી ગયા. ગાય ધરતી હતી અને બળદ ધર્મ હતો. ધરતી અને ધર્મ બે રડતા રડતા કહે કે આ કાળો પુરુષ કોઈ સાધારણ તત્વ નથી, આ કળિયુગ છે. ધર્મની હાનિ કરી રહ્યો છે, મારી રહ્યો છે, પૃથ્વીને છિન્ન ભિન્ન કરી રહ્યો છે. આને મારી નાખો. દોષિતને દંડ દેવામાં કોઈ વાંધો નથી, આનું માથું કાપી નાખો. પણ કળિયુગ બહુ ચાલાક હતો. રાજા પરીક્ષિતના પગમાં પડી ગયો અને નકલી આંસુ વહાવવા લાગ્યો કે મને મૃત્યુ દંડ સિવાય કોઈ પણ દંડ દો. બોલે મારા રાજ્યની બહાર નીકળી જા. બોલે સમુદ્ર પર્યંતાયામ, સમુદ્રની મર્યાદા સુધી રાજા પરીક્ષિત તમારું રાજ્ય ચાલે છે. મારે ક્યાં રહેવું? કોઈ નાનું સ્થાન આપી દો ને તો હું રહી જાઉં. અને કળિયુગને રહેવા માટે રાજા પરીક્ષિત 4 સ્થાન આપે છે. વેદવ્યાસજીની કલમે લખ્યું છે, ગાયું છે. અભ્યર્થિતસ્તદા તસ્મૈ સ્થાનાની કલયે દદો યુદમ પાનમ સ્ત્રિયઃ સૂના યત્રા ધર્મશ્ચતુર્વિદઃ. 4 સ્થાન આપ્યા. એમાં પહેલું જ્યાં જુગાર રમાતો હોય ત્યાં કળિયુગ હોય છે. જ્યાં શરાબનું પાન થતું હોય ત્યાં કળિયુગ હોય છે. જ્યાં હિંસા થતી હોય ત્યાં કળિયુગનો વાસ. અને જ્યાં વ્યભિચાર થતો હોય ત્યાં કળિયુગનો વાસ. રાજા પરીક્ષિતે આપ્યા 4 સ્થાન. એટલે કળિયુગે કીધું કે સમય સારો છે, આવા બહુ કંઈક ધંધા થતા નથી, તમે એકાદું સારું સ્થાન આપો ને. એટલે અનિતિની સંપત્તિ અને અનિતિના સોનામાં પણ 5મું સ્થાન આપ્યું. જ્યાં રાજા પરીક્ષિતના મુખારવિંદમાંથી શબ્દ નીકળ્યો કે અનિતિની સંપત્તિ ને અનિતિના સુવર્ણમાં કળિયુગ તારો વાસ. બે દાંતની વચ્ચે જીભને કરડી કચડી અને બહારથી દાંત કાઢતો પણ મનમાં ક્રોધિત થઈને રાજીપો વ્યક્ત કરતા કળિયુગે કીધું કે રાજા પરીક્ષિત તમારા જીવનની મોટામાં મોટી ભૂલ કરી ગયા છો. તમે રાજા અને મહારાજાઓ સંપત્તિ અને સુવર્ણની વચ્ચે જીવવા વાળા, એમાં ક્યારે અનિતિની સંપત્તિ કે અનિતિનું સોનું આવી જશે તમને ખબર નહીં. તમારા મૃત્યુનો રસ્તો રાજા તમે જ નક્કી કરી નાખ્યો છે. અને કળિયુગને માર્યોની આ 5 સ્થાન આપીને નીકળી ગયા. ઘણા લોકો રાજા પરીક્ષિતનો દોષ કાઢે છે, વાંક કાઢે કે કળિયુગ હાથમાં આવી ગયો હતો ને ભૂલ ભરેલો હતો ને. ભૂલ ભરેલો હોય એને દંડ દેવામાં રાજાને દોષ લાગતો નથી. એનું માથું વાઢી નાખ્યું હોત ને કળિયુગને મૃત્યુ દંડ દઈને મારી જ નાખ્યો હોત તો ઘણા બધા કટાક્ષ કરે લોકો કે અત્યારે કળિયુગ હોત જ નહીં, આપણે બધા સતયુગમાં જીવતા હોત. પણ રાજા પરીક્ષિતે મોટી ભૂલ કરી નાખી. દોષિત હાથમાં આવેલા કળિયુગને માર્યો નહીં, જવા દીધો. આપણને એવું લાગે કારણ કે આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે આપણે વિચારતા હોઈએ. પણ રાજા પરીક્ષિત બહુ બુદ્ધિશાળી હતા, કારણ કે પાંડવના પૌત્ર હતા, વારસદાર હતા, અતિ બુદ્ધિશાળી વિવેકી વ્યક્તિત્વ હતા. એને ખબર હતી કે જો વિવેક ચૂકીએ તો કળિયુગ ખરાબ છે, બાકી થોડીક મર્યાદા આવી જાય, વિવેક આવી જાય
અને જો થોડુંક ભજન થવા માંડે તો કળિયુગ જેવો કોઈ સારો યુગ નથી. અને સુખદેવજી મહારાજે આગળ ભાગવતમાં કીધું છે, શ્લોક પણ ગાયો છે. હે રાજા પરીક્ષિત, કલેર દોષ નિધે રાજન અસ્તિ એકો મહાન ગુણ કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ વ્રજે. કલેર દોષ નિધે રાજન. સુખદેવજી મહારાજ કહે કે રાજન પરીક્ષિત, કળિયુગના દોષ ન ગણાય એટલા અગણિત દરિયાના કિનારે જાઓ અને 7 સમંદરની અંદર જેટલા રેતીના કણ, એનાથી કળિયુગના દોષ વધારે. આકાશમાં દ્રષ્ટિ કરીએ ને ગણ્યા ગણાય નહીં, વીણા વીણાય નહીં એવા તારા કરતા પણ કળિયુગના દોષ વધારે. વાયુમંડળની અંદર, આખા બ્રહ્માંડની અંદર જેટલા રજગણ ઉડે એના કરતા કળિયુગના દોષ વધારે. કલેર દોષ નિધે રાજન, ન ગણી શકાય એટલા કળિયુગના દોષ પણ અસ્તિ એકો મહાન ગુણ. રાજા પરીક્ષિતની સામે સુખદેવજી મહારાજ કહે કે બધા નાના નાના રેતી જેવા દુર્ગુણ કરોડો, પણ મેરુ પર્વત જેવો મોટો એક ગુણ છે. કયો? બોલે કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય. તાળી પાડીને કૃષ્ણ રામનું કોઈ નામ લે તો મુક્ત સંગ પરમ વ્રજેત. બધા જન્મ જન્માંતરના આપણા પાપો બળી જાય અને જીવ શિવ બની જાય, આત્મા પરમાત્મા બની જાય. કળિયુગની અંદર આ તાકાત અને તેવડ છે. અને એટલે જ કદાચ રામાયણે ગાવું પણ પડ્યું હશે. કલયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમીર સુમીર ઉતર રહી ભવ પારા. કલયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમીર સુમીર ઉતર રહી ભવ પારા. કલયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમીર સુમીર કલયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમીર સુમીર ઉતર રહી ભવ પારા. રાજા પરીક્ષિતને આ વાતની ખબર હતી કે કળિયુગની અંદર આપણાથી કાંઈ ન થાય. ઘરનો ખૂણો પકડી તાળી પાડીને રામ રામ બોલીએ તો રામ મળે એ કળિયુગમાં સંભવ છે. બાકી સત્ય ત્રેતા અને દ્વાપર યુગની અંદર સતયુગમાં એવું ક્યાંક વાત મળે કે 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું સત્યયુગમાં માણસનું. એમાં 36,000 વર્ષ મહાત્મા તપ કરતા હતા. રાફડા બાજી જાય, જંગલ બાજી જાય ને એમાંથી મહાત્માને બહાર કાઢતા. એ 36,000 વર્ષનું તપ કર્યા પછી પણ હરિ મળે કે ન મળે એની કોઈ ખાતરી નહોતી. કળિયુગમાં આપણે કાંઈ નહીં કરવાનું, તાળી પાડીને પ્રભુનું નામ લઈએ તો પ્રભુ આપણને મળી જાય. બહુ સરળ અને શ્રેષ્ઠ યુગ, એ માટે કળિયુગને માર્યો નથી અને રાજા પરીક્ષિત કળિયુગને જીવિત રાખે છે. એક દિવસની ઘટનાનું વર્ણન કરતા સુદપુરાણી કહે કે શૌનકાદી મહાત્મા રાજા પરીક્ષિત પોતાના સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા અને પોતાના કક્ષની અંદર પૂર્વજોનો કોઈ પટારો દેખાણો, ખોલાયો. એમાંથી ઘણી બધી સારી પૂર્વજોની નિશાની નીકળી. રાજા પરીક્ષિત આનંદિત બન્યા અને છેલ્લે એક સોનાનો મુંગુટ હતો. રાજા પરીક્ષિતે હાથમાં લીધો, આંખની સામે, ચહેરાની સામે લઈ ગયા. એમાં અગ્રભાગમાં લખ્યું હતું, કોતર્યું હતું કે આ અનિતિનો મુંગુટ છે, કળિયુગી મુંગુટ છે, કોઈ પહેરવો નહીં. રાજા પરીક્ષિતે વાંચ્યું ને છતાં પણ ધારણ કર્યો.
અને જેવો એ કલયુગી મુંગુટ ધારણ કર્યો એટલે એના મનની અંદર શિકાર કરવા જવાનો વિચાર આવ્યો અને જંગલની અંદર શિકાર કરવા માટે જાય છે. ક્ષુધા અને તૃષા, ભૂખ અને તરસ ખૂબ લાગી છે અને હવે પાણી માટે દર ભટકે એવામાં એક સરોવર દેખાયું. પાણી પીવા માટે જાય પણ બાજુમાં એક આશ્રમ દેખાયો એટલે રાજા પરીક્ષિત નીચે ન ઉતર્યા, આશ્રમમાં ગયા કે મહાત્માના હાથનું પાણી પી લઉં. શ્રમિક મહાત્માનો એ આશ્રમ હતો અને જેવા પ્રવેશ દ્વારની અંદર પ્રવેશ કરે એટલે એક ઝૂંપડીની અંદર બિચારા પલાઠી લગાવીને ગાઢ સમાધિની અંદર બેઠા હતા. રાજા પરીક્ષિતના માનસમાં કળિયુગ વાપી ગયો હતો ને એમાં ભૂખ્યા હતા અને તરસ્યા હતા એટલે એને એમ થયું કે આ મહાત્મા સમાધિમાં બેઠા નહોતા પણ મને જોઈ અને સમાધિનું નાટક કરવા લાગ્યા છે અને આવા નવટંકી કરનારા ઢોંગી મહાત્માનું મારા રાજ્યમાં કામ નથી, આને મૃત્યુદંડ દેવો જોઈએ. અને પાથામાંથી તીર કાઢ્યું મારવા માટે જ્યાં તૈયાર કર્યું પણ શ્રમિક મહાત્મા તો સમાધિમાં હતા. બાજુની અંદર એક સર્પનું દર હતું ને એમાં એક નાગ રહેતો હતો. એને વિચાર કર્યો કે આ શ્રમિક બ્રાહ્મણ છે, રાજા પરીક્ષિત અત્યારે તરસ્યા છે, ભૂખ્યા છે અને સંસ્કૃતનું સૂત્ર છે બુભુક્ષિતઃ કિમ ન કરોતિ પાપમ. ભૂખ્યો વ્યક્તિ કોઈ પણ પાપ કરી નાખે. અત્યારે જો આ બાણ ચાલી જશે, તીર ચાલી જશે તો શ્રમિક બ્રાહ્મણ મરી જશે અને પાંડવ બ્રહ્મ હત્યામાં સપડાઈ જશે. પાંડવો એ રાજા પરીક્ષિત અને પાંડવોને બ્રહ્મ હત્યામાંથી તારવા અને ઉગારવા માટે એ સર્પ બહાર નીકળે અને રાજા પરીક્ષિતને પેલા સર્પના ઉપર ક્રોધ આવ્યો અને સર્પને મારી દીધો અને સર્પ મરી ગયો. શ્રમિક મહાત્માની પરીક્ષા કરવા માટે પોતે જ મારેલો સર્પ શ્રમિક મહાત્માના ગળાની અંદર રોપ્યો અને રાજા પરીક્ષિત નીકળી જાય છે. खूब आनंदनी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे परम आदरणीय सेठ अनिल भाई अग्रवाल जी दलवाड़ा बासुकीनाथ महादेव मंदिर के अध्यक्ष एवं उद्योगपति आदरणीय श्री अनिल भाई जी अग्रवाल जी पधार रहे हैं. एक बार जोरदार तालियों से हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं. आप आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आपका स आदर स्वागत है, सम्मान है. आगे सोफा बैठे, आगे आगे आए. बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और पूरे हृदय से आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं. अभी वसंत पंचमी की कथा नानी दमन माची समाज सत्यनारायण मंदिर में जब शुरू हुई थी तब हमारी कथा दलवाड़ा महादेव जी के सानिध्य में आदरणीय श्रेष्ठ श्री अनिल भाई अग्रवाल जी एवं हमारे माताजी सुलोचना देवी के सानिध्य में हुई थी. 9 दिन की भागवत कथा. आगे भी मैंने वहाँ भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा सब किया है और हम तो कई तीर्थों में भी जाके आए हैं. जिस बात हम कथा कर रहे हैं अभी सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने वाले हैं, राजा परीक्षित जाने वाले हैं. उस शुकताल में मेरी कभी कथा नहीं हुई थी. हम एक बार बैठे थे ऑफिस में, बोले भरत जी आपकी कथा कहाँ नहीं हुई? मैंने बोला शुकताल में नहीं हुई है. बोले शुकताल में जाते हैं तो अपने सारे के सारे सगे वाले इष्ट मित्रों को लेकर बड़ी मात्रा में हम शुकताल में गए थे और 2 वक्त की कथा थी. सुबह 9 से 12, शाम 3 से 6 और अद्भुत कथा, मात्र और मात्र भागवत कथा और कोई बात ही नहीं आती थी इसमें सांसारिक. बड़ा आनंद आया था. शुकताल तो अब तो कोई व्यवस्था भी ज्यादा हो चुकी होगी लेकिन उसी वक्त तो जनरेटर से जब माइक चलते थे, अंधेरा, उसी वक्त हमने बहुत सालों बाद कथा की और कथा की समाप्ति के बाद, पूर्णाहुति के बाद आयोजकों से मिले हमारे अनिल भाई अग्रवाल जी सेठ जी. बोले क्या आपकी याचना है? बोले आपकी ओर से रूम बंधवा जाए, एक खंड हमें चाहिए. तो 5 लाख रुपया देकर एक कक्ष बंधाया है. मैंने तो नहीं देखा है लेकिन सेठ जी कहता है कि इसमें मेरा भी नाम लिखवाया है. शुकताल में एक कक्ष उनकी तरफ से बंधवाया है लेकिन कथा मैं कर रहा था तो तख्ती पर मेरा भी उसके साथ नाम लिखा है. ऐसे हमारे आदरणीय सेठ अनिल भाई अग्रवाल जी. फिर एक बार बैठे थे कि आपकी कोई कथा और कहाँ नहीं हुई? बोले 18 पुराण जहाँ पर गाया गया है वो नैमिषारण्य में मेरी कथा नहीं हुई. तो बोले हम नैमिषारण्य में चलते हैं. फिर हम नैमिषारण्य में गए थे सब लोगों को लेकर बड़ी मात्रा में और हनुमान गढ़ी में
बहुत बड़ी भागवत कथा की थी हमने। 7 दिन पूरे हुए तो हनुमानगढ़ी के महात्मा महंत जो थे वो मिले सेठ जी को। सेठ जी ने कहा कि हमने कथा किया है, बोलिए आप क्या हमसे अपेक्षा रखते हैं? बोले एक सुंदर सरोवर आपकी ओर से हो जाए, भगवान महादेव को इसमें रखेंगे। और लाखों की मात्रा में दान दिया और एक सरोवर अग्रवाल परिवार की ओर से, हमारे अनिल भाई अग्रवाल जी की ओर से, सुलोचना देवी माता जी की ओर से, वहां पर भी कभी भी जाओ आप नैमिषारण्य में तो हनुमानगढ़ी में एक सरोवर बनाया हुआ है, वो आदरणीय अनिल भाई अग्रवाल जी की ओर से बंधा हुआ है। ऐसे भागवत प्रेमी है हमारी माता सुलोचना देवी, लेकिन हमारे शेठ अनिल भाई अग्रवाल संपूर्ण शिव भक्त है। वो जब सावन मास आता है, श्रावण महीनो अपनी भाषा में कहिए तो, हिंदी का सावन मास 15 दिन पहले गुरु पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, तो हमारा भी लंबा देता है 1.5 महीने तक। उसका जो अभिषेक होता है दलवाड़ा बासुकीनाथ महादेव मंदिर में, अभिषेक तो सभी जगह पर अच्छा होता है, वो तो सब समान गिना जाता है, लेकिन औषधि के रूप में जो गिना जाए, देखा जाए, सुना जाए, तो मैंने दलवाड़ा बासुकीनाथ महादेव का अभिषेक जो सेठ अनिल भाई अग्रवाल जी करते हैं, ऐसा अभिषेक मैंने नहीं देखा है। जितनी बड़ी विपुल मात्रा में जो औषधियां होती है, और ये सुनने की बात नहीं, अब तो नजदीक है। गुरु पूर्णिमा के सुबह 7:30 पौने 8 बजे से अभिषेक शुरू हो जाता है। लाभ लेना, आप दुर्लभ हो जाओगे। इतना भव्य अभिषेक एक दिन में 2 बार भी करते हैं, 3 बार भी करते हैं, लेकिन कम से कम एक बार तो अभिषेक करते ही है। लेकिन देखने योग्य, जीव को शिव बनाने वाला अभिषेक आदरणीय अनिल भाई अग्रवाल जी सालों से करते आए हैं। मैं भी कई बार इस अभिषेक में शामिल हुआ हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, सुनी हुई बात नहीं है, देखी हुई और हाथों से की हुई बात है, इसलिए व्यासपीठ से दोहरा रहा हूँ। तो ऐसे आदरणीय अनिल भाई अग्रवाल जी सेठ आए हैं, एक बार हाथ ऊंचा करके उसको स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम भगवान महादेव जी की धुन गाते थे, तो 1-2 मिनट के लिए और पंचाक्षर की धुन गा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
जय महादेव, जय वासुकीनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी अभी यहाँ 2-3 महीने पहले स्मशान घाट में एक कथा हुई और 100 फीट लंबी ऐसी कुछ 65 फीट की शिव जी की मूर्ति लगने वाली है। तो इसमें भी 11 लाख का योगदान अनिल भाई अग्रवाल जी का। 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख। एक बार जोरदार ऊंची तालियों थी। ये शिव भक्ति, उसको शिव भक्ति कही जाती है। 51 लाख रुपया। मैं भी वहां पर बैठा था, वो लोग जब आए थे तो मैं भी अनायास ऑफिस में बैठा था सेठ जी के साथ, और भरत भाई सब लोग आयोजक आए और बात बताई कि हमें बड़ी मूर्ति रखते हैं। तो फिर 51 लाख रुपया अनिल भाई अग्रवाल जी ने दे दिया। काठियावाड़ में एक दोहो, जननी जनितो भगत जन का दातार ने का जननी जन तो भगत जान का दातार का जननी जनितो भगत जन का दातार અને કા શુરવીર। એ જ માં સંતાન વાળી છે કે જેના ઉદરમાંથી ભક્ત સંતાનો જન્મે, દાતાર દાનેશ્વરી સંતાનો જન્મે અને ધર્મની રક્ષા કરવા વાળા શુરવીર સંતાનો જન્મે છે। અહીંયા કોઈ વ્યક્તિની વાહવા નથી, વ્યક્તિ વંદના વ્યાસપીઠ પરથી આવતી જ નથી, વ્યક્તિત્વની વંદના થાય છે। એના દ્વારા કરાયેલી સેવાની વાહવા થાય છે, જે સમાજને પ્રેરણા મળે એ માટે। બાકી કોઈ વ્યક્તિ પોતાની સરાહનાનું ભૂખ્યું જ ન હોય, ગમતુંય ન હોય, પણ આપણને બીજાને પણ પ્રેરણા મળે કે આપણે પણ આવું કંઈક કરી શકાય, એને માટેની આ વાહવા છે। तो खूब खूब साधुवाद आप आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। आखिर राजा परीक्षित भूख्या था, तरस्या था। थोड़ी देर के लिए हम हिंदी में चले जाए। हम तो सब हिंदी चैनल, हिंदी टीवी देखते हैं, तो हमको तो हिंदी आता ही है। सत पुराण कहते हैं कि हे शौनकादि महात्माओं, जो भूखे और प्यासे राजा परीक्षित ने शमीक महात्मा को कहा कि मुझे पानी दो, लेकिन वो तो समाधि में बैठा हुआ था। क्रोध आया, मार डालो इस ढोंगी महात्मा को। और जैसे ही तीर चलने की तैयारी में और बगल में ही सर्प का दर था, तो एक सर्प उठा और भूखा और कलयुगी राजा परीक्षित को क्रोध सर्प पे ज्यादा आया कि ये पाखंडी महात्मा अपनी सुरक्षा के लिए इतने बड़े बड़े सर्प नाग रखते हैं। तो जो तीर उन्होंने राजा परीक्षित ने महात्मा को मारने के लिए, शमीक को पीटने के लिए तैयार किया था, सर्प पर क्रोध आया तो वो तीर सर्प पर चला दिया। सर्प को लगा और सांप मर गया। ये महात्मा ढोंगी है या वास्तविक है, उसकी परीक्षा करने के लिए खुद ने मारा हुआ ये सर्प अपने ही तीर से उठाकर उसके गलों में आरोपित किया। यदि ढोंगी समाधि होगी तो जागृत हो जाएंगे, लेकिन शमीक महात्मा वास्तविक समाधि में थे तो फिर कोई फर्क नहीं हुआ उसको। इतना पाप कर्म करके चले गए। भागवत में इतनी व्याख्या मिलती है, लेकिन हरिवंश पुराण में कुछ ऐसा मिलता है, लिखा है कि वो 9 कुल के 9 जाति के नाग होते हैं। इसमें तक्षक जाति का वो सर्प था और शमीक महात्मा का कोई पूर्वज आत्मा सर्प योनि धारण करके आश्रम में निजानंद के लिए आया था। उन्होंने सोचा कि यदि
राजा परीक्षित शमीक को मार देंगे तो वो ब्राह्मण देह है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी पांडव वंश को, और उसको पांडव को ब्रह्म हत्या से दूर रखने के लिए शमीक के सामने तक्षक ने अपनी प्राण दे दी और वो सफल भी हो गई। राजा परीक्षित ने तक्षक को मारा, महात्मा के गले में लगाया और घर पर गए और मस्तक पर लगा हुआ वो मुंगुट जैसे ही वो उतारे और जैसे ही मुंगुट से दूर होते हैं तो ब्रह्मज्ञान होने लगा, क्योंकि मुंगुट कलयुगी था। जैसे ही कलयुग मुक्त हो गए राजा परीक्षित, तो फिर रोम रोम में से रुदन की आवाज आने लगी, आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी, अपने आप को कोसने लगे राजा परीक्षित कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया है। मैं कभी किसी को, छोटे से छोटे बच्चे को भी मैं तुकारा नहीं करता हूँ, सम्मान से बुलाने वाला एक ब्राह्मण महात्मा शमीक, उसको कितनी गालियां दी, कितनी निंदा की। एक निर्दोष सर्प तक्षक को मैंने मारा, महात्मा के गले में मैंने लगाया। मैंने कितना बड़ा भयंकर पाप कर दिया है। सर्वस्व का त्याग करके अपने किए हुए कर्म की सजा पाने के लिए राजा परीक्षित स्वयं तैयार हो गए। और यहाँ पर शमीक महात्मा समाधि में बैठे हैं, गले में सर्प है और उसका पुत्र श्रृंगी आता है विद्यार्थी मित्रों के साथ, और देखा अपने पिता के गले में, कंठ में मरा हुआ एक सर्प था, तक्षक था, और पुत्र श्रृंगी क्रोधित हो गया, हाथ में जल लिया कमंडल में से और श्राप दे दिया कि जिस व्यक्तित्व ने ये पाप कर्म किया है वो ही सर्प तक्षक जीवित होगा और सप्तमें दिन उसको काट लेगा, दंश देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप का शब्द निकले, पानी का जल बूंद धरती पर गिरा और शमीक महात्मा की समाधि टूट गई। और जागते ही तुरंत उन्होंने कहा कि बेटा श्रृंगी, तूने किसको श्राप दिया? रोते रोते श्रृंगी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने आपके गले में सर्प डाला उसको मैंने श्राप दिया कि वही सर्प 7वें दिन जीवित होगा, उसको डंक देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। भावुक होकर पिता शमीक कहते कि बेटे, मेरे कंठ में ये मरा हुआ तक्षक राजा परीक्षित ने डाला, तूने तो राजा को मार दिया, इस पृथ्वी को अनाथ कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया? बोले आपके गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाला तो मैंने मृत्यु दंड दे दिया। तब उसके पिता ने कहा कि तूने बहुत गलती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उसको समझा दे, बता दे कि 7 दिन है राजा परीक्षित के पास, अपना कल्याण कर ले। फिर शिष्यों को भेजते हैं और राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस सांप को आपने मारा है अपने तीर से, अपने हाथ से, और शमीक महात्मा के गले में लगाया है, वही सर्प 7वें दिन जीवित होने वाला है और आपको डंक देने वाला है और आपकी मृत्यु होने वाली है। शब्द परिवार वालों ने सुना तो सारे के सारे परिवार जन व्यथित हो गए, रोने लगे। लेकिन 7वें दिन जिसकी मृत्यु थी वो राजा परीक्षित प्रसन्न होकर अपने गले में जो सुवर्ण के गहने पहने थे तोड़ तोड़ कर शिष्यों को और सबको देने लगे, नृत्य करने लगे कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल के बाद, और 10 साल के बाद नहीं तो 100 साल के बाद मरना तो था ही, लेकिन किया हुआ कर्म भोगने के बाद मुझे मेरी मृत्यु आने वाली है, उसका मुझे आनंद था। राजा परीक्षित को वो भी विवेक था कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो 100 साल के बाद इस देह को मृत्यु को देना ही है। सर्वस्व का त्याग किया है। जन्मेजय जो युवान हुआ है उसको राज तिलक किया और धर्म का शासन चलाने की आज्ञा देकर राजा परीक्षित बाहर निकलते हैं। समाधि में सारे के सारे महात्मा को पता चल गया, आ गए। सारे के सारे महात्मा के चरणारविंद में झुककर 2 हाथ जोड़ते हुए राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे पास 7 दिन है और मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन 7 दिन तक में मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मृत्यु न आ जाए ऐसी मैं कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मृत्यु आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मृत्यु से पहले मुझे मुक्ति मिल जाए ऐसा कुछ कीजिए। हाथ पकड़कर राजा परीक्षित को सारे के सारे महात्मा शुकताल गंगा के तट पर एक वटवृक्ष के नीचे दरबासन में बिठा देते हैं और सुखदेव जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया है। बौद्धिक प्रहार भी हुआ है और नारद जी ने कहा कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का कल्याण करना है आपको। और फिर सुखदेव जी महाराज आते हैं
श्याम वर्ण है, आजानु बाहु है, बिखरे हुए बाल है, हाथ में कमंडल है, दिशारूपी वस्त्र धारण किया है, बिल्कुल दिगंबर है। उसकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग में स्थिर है। मान अपमान लाभ अलाभ जय पराजय की जिसको कोई पड़ी ही नहीं है, ऐसे निर्लेप सुखदेव जी महाराज धीरे 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 आते हैं और सारे के सारे महात्मा खड़े हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे हाथ करते हुए सुखदेव जी महाराज का जय जयकार करते हैं। हम भी सुखदेव जी महाराज का जय जयकार कर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ने किसी का सम्मान नहीं किया, नहीं स्वीकारा, किसी और के सामने देखा तक नहीं। मात्र और मात्र राजा परीक्षित दिखाई दिया गया, उसके सामने आसन लगाकर पलाठी लगाकर सुखदेव जी महाराज बैठ गए। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज बैठ गए तो तुरंत राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे भगवंत, इस संसार में जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसका परम कर्तव्य क्या होता है? स्कंज को बदल देते हैं और वेदव्यास जी की वाणी लिखते हैं यहाँ पर। वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः मूसा श्रोतव्यादिषु यः परः। जैसे ही राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि जिसकी मृत्यु समीप हो, नजदीक हो, निकट हो, उसका परम कर्तव्य क्या है, तुरंत राजा परीक्षित ने मंगलाचरण भी नहीं किया, जय जयकार भी नहीं किया और जवाब देने की उतावली कर दी, जल्दी कर दी। वर्यानेशते प्रश्न, हे राजा परीक्षित, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, राजी हूं। इसीलिए प्रसन्न नहीं हूं कि सम्राट बनकर, सम्राट होते हुए भी आप श्रोता बनकर आ गए। नहीं, ऐसी कोई बात लालचा नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, लेकिन आपका प्रश्न जो है, कृतो लोक हितम नृपः, हे नृप श्रेष्ठ परीक्षित, आपने लोक हित का प्रश्न कर दिया। मृत्यु तो आपकी नजदीक थी, 7वें दिन आपकी मृत्यु आने वाली है, लेकिन आपने प्रश्न किया कि जिसकी भी मृत्यु समीप हो उसका परम कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस संसार में प्रकट हुआ प्रत्येक जीव मृत्यु के किनारे ही बैठा है। मृत्यु नाम की खाई करोड़ों किलोमीटर डीप है, ऊंडी है, गहनी है, और कोई भी जीव जन्म लेता है तो बिना कोई रस्सी, बिना दौरड़ा वैसे ही लटक रहा है। कोई एक क्षण में गिर जाता है, कोई एक कलाक में, कोई एक दिन में, कोई एक साल में, कोई 10 साल में, और गिरा 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 करते करते कोई 100 साल भी जी जाता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने बहुत साफ बात कर दी। उसका मतलब यही नहीं किया जाता है कि हर व्यक्ति 100 साल जीने वाला है। प्रत्येक साल हमारे लिए आखिरी हो सकता है, प्रत्येक मास हमारे लिए आखिरी हो सकता है, प्रत्येक दिन हमारे लिए आखिरी हो सकता है, प्रत्येक घंटा हमारे लिए आखिरी हो सकता है, प्रत्येक मिनट हमारे लिए आखिरी हो सकता है, प्रत्येक सेकंड हमारे लिए आखिरी हो सकता है, और प्रत्येक क्षण हमारे लिए आखिरी हो सकता है। और इसीलिए कवि ने कहा कि हरदम हर भज नहीं भरोसा कोई दम का, हर श्वास हरि को बदले, हरदम हर भज नहीं भरोसा कोई दम का, क्योंकि एक न एक दिन निकलने वाला है दम आदम का। सभी के ऊपर विश्वास करने का, हमारा कितना भी 7 पीढ़ी का कोई इनेमी है, दुश्मन है, तो उसका भी विश्वास कर लेना। घटाटोप जंगल में हम जाए और प्रकृति को देखते देखते जाए और सामने देखा तो 3 फीट दूर एक कोबरा नाग, काला नाग फैन लगाकर बैठा है। फिर हमें क्या करना है? પછી આપણે કાંઈ ન કરાય, ફખણું રહેવાય। ऐसे ही शांत रहते हैं तो बिना हिलाए, बिना ढीली किए सांप काटता नहीं है। દોડડાયા ન થાય ને હખણા રહી તો બાજુમાંથી કોઈ हो जाए। लेकिन यहाँ पर बात ये कही जाती है कि घटाटोप जंगल में सामने सर्प आ जाए तो उसका भी विश्वास करना, उसका भी भरोसा करना। घटाटोप जंगल में आगे जाए और कदावर सिंह आ गया
फिर क्या करना, फिर भी हमें कुछ नहीं करना, अदाब लगा कर खड़े रहना। यदि वो भूखा होगा तो हमारा काम निपट लेगा, लेकिन भूखा नहीं होगा तो वो भी बगल में से चला जाएगा। इस शेर का, हिंसक प्राणी का भी भरोसा करना। लेकिन महापुरुषों कहते हैं कि जो श्वास हमारे भीतर और बाहर चलती रहती है 24 घंटे तक, उस श्वास का कभी विश्वास मत करना, क्योंकि वो नक्की करके आया है, लकीर लगा कर आया है कि एक दिन तो मैं बाहर जाऊंगा ना, फिर भीतर जाने वाला नहीं हूं। विश्वासघात करने के लिए ही श्वास है, लेकिन ऐसा विश्वासघात हो जाए इससे पहले जिन्होंने भगवान का नाम ले लिया, हरदम हरवज हर श्वास जिन्होंने हरि का नाम ले लिया, उसका कल्याण हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। रुक जाएगी चलते चलते, नब्ज कट जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, बड़े विवेक से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित संसार में प्रकटा हुआ प्रत्येक जीव मृत्यु के समीप बैठा है, और प्रत्येक क्षण अंतिम समझकर जो भगवान का स्मरण कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने देखा राजा परीक्षित के चेहरे पर अशांति थी, अधैर्य था कि 7वें दिन मेरा काल आए, मुझे तक्षक डंक दे दे, वो कोई गलती नहीं है, वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरी गति होने वाली है या नहीं, मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके चेहरे पर कोई प्रश्न दिखाई दिया गया। सुखदेव जी महाराज बड़े चौकन्ने वक्ता थे, और उसने कहा, सोचा कि मेरे श्रोता को बिल्कुल निर्भय करना चाहिए। और फिर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित, आप घबराओ मत, आपके मन में डर है, भय है कि 7वें दिन मुझे गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आपको लिखकर देता हूं कि 7वें दिन भागवत की कथा पूर्ण होने से पहले आपकी गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे मस्तिष्क और मेरे रोम रोम में भागवत लेकर आया हूं। गाया है वेदम व्यास जी ने, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, अधीतवान द्वापराधो पितुर्द्वे पायनादहम, इदम भागवतम नामम। एक भागवत नाम का ग्रंथ मेरे मानस में, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में है। और पुराणम ब्रह्म संहितम है तो पुराण 18 पुराण में से एक पुराण ही है, लेकिन ब्रह्म सम्मिलित जिसमें ब्रह्म है ही। जिस भागवत में भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य, अपना तेज, अपना भग यानी कि भगवान पना डाला है, वो भागवत ब्रह्म से सम्मिलित है। ऐसा भागवत लेकर आया हूं, और वो भागवत आपका कल्याण करेगा, करेगा और करेगा। और सुखदेव जी महाराज ने अभी थोड़ा याद आया तो वंदना की है अपने पिता गुरु वेदम व्यास जी की, सरस्वती माता की वंदना करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गति और मुक्ति इंसान जीव यदि चाहे तो घड़ी 2 घड़ी में प्राप्त कर सकते हैं। और खटवांग राजा का दृष्टांत दिया है, गाया है
खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वेयत्तामिहीश मुहूर्तात् सर्वमृत्सज्य गतवान भयम हरिः। खट्वांग राजा का दृष्टांत देते हुए कहते हैं सुखदेव जी महाराज के खट्वांग नाम का राजा यम का मित्र था, यमराजा का। कई बार यमलोक में जाते थे योग माया के द्वारा और मित्र समझकर सत्संग करते थे। एक बार गए हुए थे, सत्संग चल रहा था खट्वांग और यमराजा का। अचानक याद आया तो खट्वांग ने बोल दिया कि मित्र यम, देखो तो सही मेरी आयु कितनी बाकी है, कितना आयुष्य अभी मुझे भुगतना है, जरा देख लो। चित्रगुप्त को बुलाया, पन्ना निकाला और ध्रुजते हुए चित्रगुप्त ने यमराजा को बताया कि घटिका द्वयम, इस खट्वांग महात्मा की तो घटिका द्वयम, 2 ही घड़ी बाकी है। 1 घड़ी यानी 24 मिनट, 2 घड़ी यानी के 28 मिनट, करीबन पौना घंटा। घटिका द्वयम 2 ही घड़ी बाकी है। और सुखदेव जी महाराज ने बात समाप्त करते हुए कह दिया कि घटिका द्वयम 2 ही घड़ी में सर्वस्व का त्याग कायिक वाचिक मानसिक करते हरि भजन करते हुए 2 घड़ी में खट्वांग राजा की गति हो गई थी। दृष्टांत देकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बिल्कुल निर्भय करते हुए कहते हैं कि यदि इंसान चाहे तो 2 घड़ी में मुक्ति हो सकती है, लेकिन चाह ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास 7 दिन है और 7 दिन में तो गति आपको भागवत दिलाने वाला है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, इस संसार में विवेकी व्यक्ति वो है जो मोक्षगामी है, जिसका लक्ष्य मात्र और मात्र मोक्ष है। इस जीव को शिव बनाने के लिए जो यात्रा करता है, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए यात्रा करता है, वही संसार में श्रेष्ठ बड़ा व्यक्तित्व होता है। और सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति की बात करते हुए कहते हैं सुखदेव जी महाराज के संसार में कहीं कुछ नहीं था, ब्रह्मांड रूपी पिंड निर्जीव था, प्रकृति ने तोड़ा फोड़ा, इसमें से एक पुरुष निकला जिसको नारायण कहा गया, भगवान कहा गया, प्रभु कहा गया, ब्रह्म कहा गया, ईश्वर कहा गया, जो शब्द हम बाबे। उसकी नाभि में से कमल निकला, इसमें से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। और भगवान नारायण ने तेज और आज्ञा दोनों ब्रह्मा जी को दिया। और भगवान नारायण की आज्ञा, कृपा, आशीर्वाद और तेज के कारण सारे के सारी संसार की रचना यहाँ पर भगवान करते हैं। और यहाँ पर 4 श्लोक जो भगवान नारायण ने गाए थे, जिसको विद्वानों चतुश्लोकी कहते हैं, ये भागवत वेदव्यास जी ने नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ विस्तार किया है। भागवत इसलिए नाम भी गिरा है, पढ़ा है, भगवताम उदितम प्रोक्तम इति भागवतम। ये भागवत भगवान नारायण के मुखारविंद से निकला, इसलिए उसका नाम भागवत कहा गया है। भगवताम उदितम प्रोक्तम, भगवान ही बोले हैं। 4 श्लोक उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यथित वेदव्यास जी को सरस्वती नदी के तट पर सुनाया। वेदव्यास जी ने 4 श्लोक में से 18,000 श्लोक वर्णन किया है, गणपति जी से लिखवाया, लेकिन मूलतः ये भागवत भगवान के मुख से निकला है 4 श्लोक में। ये 4 श्लोक हम गा देते हैं ताकि हमको कोई दोष न लगे। सारे के सारे 18,000 श्लोक तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन भगवान के मुख से जो 4 श्लोक निकले थे, 2 मिनट का काम है, आप बड़े ध्यान से सुन लो ताकि सारा भागवत का पाठ हो जाएगा। लिखा है, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सहसत्परं पश्चादहं यदेतस्य योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु स्वाश्चेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि
तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयः व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवास्मेवाग्रे। भगवान ने कहा चतुश्लोकी में कि हे ब्रह्मा जी, संसार में कुछ नहीं था, मैं था। अभी जो संसार में जो दिखता है सब नाशवंत है, मैं नहीं दिखता हूं इसलिए मैं शाश्वत हूं। और कल्पांते दहनोपम, कल्प जब समाप्त हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन मैं तो होने वाला हूं। इस संसार में भगवान का जन्म नहीं होता है, उसकी जवानी भी नहीं होती है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। और वही बात आदि मध्यांत हीनाय भगवान के बारे में गाया गया है। नारद जी ने कहा कि भगवान नारायण तुम्हारा कहीं आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है, मध्य भाग भी नहीं है, और हीनाय आपकी कहीं मृत्यु भी नहीं है। उसी बात को रामायण ने भी गाया है। नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और तृतीय स्कंद का प्रारंभ वेदव्यास की लेखिनी लिखती है। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन व्यक्ता स्वगृहमृत्तिम। तीसरे स्कंद का प्रारंभ जैसे ही सुखदेव जी महाराज करने लगे तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को बार बार प्रश्न करने लगे कि आपने बताया कि संसार में कुछ नहीं था, पिंड में से प्रभु प्राकट्य हुए, उसकी नाभि में से ब्रह्मा जी, फिर सारे संसार का सर्जन हुआ, लेकिन इतनी जल्दी में मुझे कुछ पता नहीं चलता है। आप विस्तार से सारे संसार का सर्जन कैसे हुआ वो बात मुझे बताओ। तो फिर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसी बात है राजा परीक्षित, आपके विदुर महात्मा ने मैत्रेय महाराज से बार प्रश्न किया था और मैत्रेय महाराज ने विदुर जी को जो जवाब दिया था वो बात बताता हूं। विदुर जी की बात आई तो राजा परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी महाराज, हमारे पूर्वज विदुर जी का थोड़ा परिचय दे दीजिए। और परिचय देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक तो वो धृतराष्ट्र का भाई था, वो पहला परिचय। दूसरा परिचय दुर्योधन का चाचा था, काका था। तीसरा परिचय दुर्योधन का मंत्री था। चौथा परिचय अति बुद्धिशाली थे। पांचवा परिचय अति नीतिवान थे विदुर जी। लेकिन ये भागवत भक्ति प्रदान और भाव प्रदान ग्रंथ है, इसमें नीति को भी कोई लेना देना नहीं है, बुद्धि को भी कोई लेना देना नहीं है। और अंतिम परिचय देते हुए
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित विदुर जी के हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति का अस्खलित प्रवाह नित्य निरंतर बहता था। ऐसे भगवान कृष्ण के परमदास सेवक एवं भगत थे विदुर जी। અને આ સંસારની અંદર ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ એ કહેવાય કે જેના ઘટની અંદર ભગવાન વસે। આપણે ગાઈએ પણ છીએ ને કે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજી। મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી। મારા
વગર સંગીત આપણે એટલે વગર તબલે છેલ્લી કડી હે મારા અંત સમય કેરી સુનો રે અરજી લેજો શ્રીજી બાવા ચરણ